occurring at the following cell. Copper 2 plus, Ag plus 2 Ag. ठीक है, और प्लीज ये गलती आप लोग ना करें, that you are, please don't just write the chemical reaction, anode, cathode, सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख करें. Point also determine number of electron used. चलिए, please do this question. Guys, can you please turn your videos on? Aliza, Deborah, Fia, Fadil, Mir Hussain. Mir Hussain तो आते पता नहीं रहते नहीं क्लास में. Safia. Thank you, Deborah. Waiting for Aliza, Fadil, Fia, and Safia. Thank you, Fadil. Okay, guys, take 3 more minutes for this question.
Okay, some of the people are done. या Ag प्लस होगा रिएक्टेंट में सत्या, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेगा था. Oh, yes, sir. Very good. Fia and Satya, बहुत बढ़िया. I'm waiting for others. Please send me whatever you have done till now. Alisa, क्या हुआ? कैमरा नहीं ऑन है आपका अभी तक? Aliza, Fia, Safia. अच्छी. Yes, Fia and Safia, what happened? Just a minute, sir. अच्छा. Me too, sir. Just a minute. हाँ ठीक है ठीक है. Deborah, please send your answer. Deborah and Alisa. Deborah, am I audible? Are you sending the answer? Still writing. No, send me whatever you have done ना. वही तो हम कह रहे हैं. Please send me whatever you have done. I cannot be waiting ना. जो भी क्या हो तो देखेंगे हम. Are you sending? अरे यार इतना. Deborah, are you sending? Aliza, what about you? Aliza? Aliza नहीं है अभी क्लास में. Deborah, please see in the screen. आप भेज भी नहीं रहे. हम जब बोलते हैं जो चीज ना प्लीज क्या करें उसको. Either you send it or you said you have not done. हम यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, इंतजार कर रहे हैं बस हम आंसर का. When I say if you have not written anything, just send me a blank sheet. Tell me what is the reaction happening at a node. Deborah, keep your mic on. You have sent it now. चलिए ठीक है. देखिए इन सब मौकों पे ना देखिए यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन है ना. अगर आपके पास टाइम कम है यू डोंट राइट द क्वेश्चन, यू डायरेक्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स. राइट. आपको ये चीज लिखने की जरूरत है ही नहीं ना यहाँ पे. तो दैट दिस पार्ट आपको बस यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, आप इसको लिखते. दैट्स इट. लेट मी जस्ट सी. एनोड में इट्स. हाँ जी सही है एनोड. कैथोड भी सही है. वेरी गुड. ठीक है. सेल कैथोड में थोड़ा सा आप मतलब वो टाइप का हो गया आपका. but that can be corrected very easily. Anode is copper getting converted to copper 2 plus and 2 electron. In the cathode, Ag plus is taking 1 electron and getting converted to Ag. But since here we have 2 electron, I will multiply 2 in the Ag part. I will get 2 Ag plus 2 electron giving 2 Ag. The complete reaction will be copper plus 2 Ag positive, giving you copper 2 plus. This 2 electron is cancelled. That is why. Plus I will have 2 Ag. That's it. Okay. So this is a cell reaction. Chali. Now, once you know this, then it will be very easy for you guys to understand what is the Nernst equation and how to use it. Okay. So now you will write the topic. Please write the topic Nernst equation. अच्छा, also how many number of electrons? देखिए number of electrons n से denote करते हैं, 2 electron use में है. So one thing is that you either write the complete anode and cathode reaction in order to get the number of electrons, or what you can do is, please see, or what you can do is
यू चूज एनी वन ऑफ, आप यहाँ आपके पास सेल रिएक्शन है, इन सेल रिएक्शन में यू चूज एनी वन ऑफ द आयंस, ठीक है, यू चूज एनी वन ऑफ द आयंस, किसी को भी चूज कर ले आप, कॉपर को चूज कर ले या फिर किसी भी स्पीशी को चूज कर ले, ठीक है। सो इफ यू सी कॉपर से कॉपर 2+, राइट, सो व्हाट इज द डेल्टा OS, इट इज इक्वल टू 2 एंड मोल्स, मोल्स मतलब यहाँ पे कितना कॉपर है, यहाँ पे कितना कॉपर है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम, तो मोल्स इज इक्वल टू 1, सो 2 into 1 is the number of electron. If you look at Ag, ठीक है, then what is the delta OS? Delta OS is equal to 1. But in the balanced chemical reaction, what is the moles? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. So moles is equal to how much? Moles is equal to 2. So if you get the number of electron, it will be 2 into delta. ये हो जाएगा number of electron 2 into 1, which will be equal to 2. So in both the cases, we are getting what? The answer is 2. Now this is a bit lengthy case where you have to see the delta OS change in oxidation state. ये मतलब एरर प्रूफ मेथड है, ये समझ लीजिए, है ना, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग द सेल रिएक्शन. वेरी क्विक वे ऑफ डूइंग इट इज दैट व्हाट, जस्ट चूज एनी आयन Cu2+, तो 2+ यहाँ पे 2 into नंबर ऑफ मोल्स आपने कर दिया 2 into 1, आपने चूज कर लिया Ag+, सो वॉट एवर द चार्ज इज मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स, है ना, दैट कैन बी ऑल्सो डन. बट ये कभी कभी ना रिएक्शन काम नहीं करता है, व्हेन यू हैव स्पीशीज लाइक दिस, व्हेन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग, MnO4 नेगेटिव is giving you Mn2+ plus there will be some electron, है ना. अब आपके पास इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है, MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पे Mn2+ है. Now you cannot do 2+ into 1, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा, ठीक है. बट वो सारी अलग चीजें हैं. I hope now you understand how to get the number of electron if you have been given a cell reaction. Okay, here you will write Nernst equation. After this you will write the topic Nernst equation. Sir, can you explain again how to find the number of electrons? एक 3 तरीके हैं. एक तो आपको एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख के, ठीक है फिया, Yes, है ना, sir. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. अगर सेल रिएक्शन दिया हुआ है, देन यू कैलकुलेट द डेल्टा OS ऑफ एनी वन स्पीशीज मल्टीप्लाइड बाय द मोल्स, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है. Yes, ये sir. थोड़ा सा कम लेंदी मेथड हो गया, बट टिल हियर ऑल बोथ दीज मेथड्स आर एरर प्रूफ. यहाँ पे कभी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना. जो मेथड है दैट इज एरर प्रूफ. अब एक शॉर्टकट मेथड है दैट इज एप्लीकेबल फॉर सम केसेस ओनली, जहां पे आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है दैट इज फ्रॉम सम ऑक्सीडेशन स्टेट n to 0 या फिर 0 से n का चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर को देखिए तो 0 से 2 जा रहा है एंड Ag+ इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0, ठीक है. सो इन दोज केसेस, वो बहुत स्पेसिफिक, ये मतलब स्पेसिफिक क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा. कुछ केसेस में आपका ये वाला काम नहीं करेगा, दैट चार्ज इनटू मोल्स. क्या मतलब इसका, फिर इन दिस सेल रिएक्शन दैट वी हैव रिटन, चूज एनी वन ऑफ द आयंस, आप किसी आयन को चूज करें, चूज एनी वन ऑफ द आयंस. फिर 2+, sir. नहीं, आयन को चूज करेंगे तो स्पीशी, केमिकल स्पीशी का भी तो नाम लेना पड़ेगा आपको. चार्ज चूज कर रहे हैं आप, तो ऐसे चूज अ आयन. 2+ आयन थोड़ी ना होता, चार्ज होता है 2+. आयन चूज करें, आयन. Iron is 1. 1, अरे यार आयन भाई, आयन, आप नाम तो भूल गए, हम इसमें क्या बोले. आयन, NaCl में क्या क्या आयन है, NaCl में Positive and negative. नहीं भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऐसे बोला जाता है. कौन कौन सा आयन है, एग्जैक्टली कौन कौन सा आयन है. अच्छा, Na+ और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. KCl में भी पॉजिटिव नेगेटिव. हाँ फिया, what are the ions in KCl? Yes. What are the ion? Positive ion. तो NaCl और KCl में कोई फर्क नहीं है. ये आपकी आवाज अटक रही थी. सो NaCl एंड KCl हैज नो डिफरेंस. अच्छा खैर छोड़ो भाई, हम बता दे रहे हैं आप लोग को, आपको याद ही नहीं आ रहा है. आयन क्या होता है, आयन होता है Ag+, आयन होता है कॉपर 2+. तो Ag+ में कितना चार्ज है. Sir, is it neutral ion? नहीं भाई, न्यूट्रल आयन कहाँ से होता है, आपकी Sir, आवाज नहीं आ रही थी. NaCl is a neutral ion, sir. आयन नहीं है ना, NaCl आयन कहाँ है यार.
NaCl इलेक्ट्रोलाइट होता है, आयन थोड़ी ना होता है, इसके अंदर आयंस होते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं बोला जाता है, Na प्लस इज आयन NaCl में और Cl नेगेटिव इज आयन। गॉट इट प्रिया? आपको आवाज नहीं आ रही मेरी ठीक से? मेरी आवाज सही से वहां जा नहीं रही होगी, ठीक है। आप बाद में हम करते हैं इसको, पहले हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, उसमें बाद में आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। चलिए, ऑल ऑफ यू रोट नेक्स्ट इक्वेशन, यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे लिखिए, it gives the relationship, please write this with me, it gives the relationship between electrode potential temperature and concentration of ions and concentration of ions। ठीक है। Now one point that is very important is Nernst equation Ne is always written for a balanced chemical reaction। is always written for a balanced chemical reaction। ठीक है, तो I am writing a very generic equation यहाँ पे, and for that I will write the Nernst equation। The generic equation here is a metal atom having n positive charge, it eats up n number of electron to get to m solid। So as you can see, reduction is taking place। So for this, the EMF of this particular reaction, Emn positive to m, will be equal to the E naught of Mn positive to m minus RT upon NF into ln Q। ठीक है, into ln Q। ln is the ln क्या है आपके पास? log। Now this is the Nernst equation in its purest form। ठीक है ना, ये हर जगह applicable in all of these cases। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लीज सी, एट 25 डिग्री सेल्सियस आपके सिलेबस में क्या है, सारे के सारे नर्स्ट इक्वेशन जो भी सवाल है, ऑल ऑफ देम आर एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन लिख सकते हैं आप इसको, राइट? इट इज सेम थिंग, 298 केल्विन, एंड कन्वर्ट ln टू log। ln को किसमें कन्वर्ट करेंगे? log में कन्वर्ट करेंगे। सो देयर विल बी सम चेंजेस, प्लीज सी इफ यू आर राइटिंग, प्लीज डोंट पैनिक, आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना? अगर लिख लेते हैं यहाँ पे, E जो होगा आपके पास, I'm not writing this whole thing, will be equal to whatever the E naught of that particular reaction is, minus, in order to convert from ln to log, I have to multiply 2.303 into, now we have R, that is 8.314, multiplied by the temperature, that is 298 Kelvin, and then I will divide this whole thing by the number of electron, whatever the number of electron is used, वो हम लोग use करेंगे, because that will depend on what the reaction is। Please see in the screen, guys, please see in the screen, then we are having multiplied by 96500। ये अभी जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, बाद में नहीं बताएंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वंस अगेन, ये चीज को समझ में नहीं आएगी, मैं बाद में नहीं बताने वाले, ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं। then ln will be what? ln will be log q, ln हो जाएगा log q। now I am explaining each and every aspect यहाँ पे, अब अगर किसी को लिखना है तो वो लिखे, हम दोबारा नहीं समझाने वाले। this 2.30 is, it is multiplied to convert ln to log। This 8.314 is here because of the universal gas constant R, the value of R। This 298 Kelvin is the temperature,
This n is the number of electron. This 96500, it is the Faraday's constant, right? Faraday's constant. ठीक है. Now if you see this 2.303, 8.314, 96500, all of these things are what? All of these things are constant. सही है? All of these things Yes, are sir. constant. Now Yes, use sir. a calculator and tell me what is the value of this whole thing. 2.303 into 8.314 into 298 upon 96500. Use a calculator and tell me what is the value of this whole thing. I want answers from everyone. Calculator तो मतलब आपके पास अगर फोन यूज करे तो कैलकुलेटर होगा, लैपटॉप यूज करे तभी कैलकुलेटर होगा. पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड करते हैं 96500 से. In the chat, please. No one is getting answer or what? Send it to Salim, by the way, okay? नहीं पूरा बताएं. At least give me 3 digits. 3 non-zero digit after the decimal point. 3 non-zero digits. 3 non-zero after a decimal point. Yes, Safia. You have to send the answer to Salim, okay? जिन लोगों को अगर कोई Learnivio को भेज रहा है उसको देख ले जरा एक बार कहाँ पे आपका मैसेज जा रहा है. ठीक है ना? तो आप लोग ये समझ में आ गया. Rather than all of these numbers, what I can use the number 0.0591, right? 0.0591. अब आपके पास इस स्पेसिफिक केस के लिए at 25 degrees Celsius, this is true only and only for what? 25 degrees Celsius. अगर टेम्परेचर चेंज होगा, ये चीज खास तौर पे कभी छेड़ देते हैं जेई एडवांस के टाइम पे, ठीक है? जेई मेंस के टाइम पे कभी कभार इस तरह का सवाल आया कि टेम्परेचर उन्होंने बदल दिया. अब बच्चों को जो याद रहता है, उनको क्या याद रहता है? E is equal to E0 minus 0.0591 divided by the number of electron depending on the reaction and into log Q. This is something that people generally remember. But आपको ये पता होना चाहिए that this is coming from this particular whole equation. यहाँ पे temperature भी एक factor है, and that is why I write always, whenever I am writing the Nernst equation, it gives the relationship between the electrode potential, टेम्परेचर है ना, कॉमा देखेंगे हमें, टेम्परेचर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयन. यहाँ पे टेम्परेचर का भी एक रोल है. एक तो रोल है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ आयन का. दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल, बट देयर इज आल्सो अ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. ऑल्दो एनसीईआरटी हैज टेकन टेम्परेचर टू बी अ कांस्टेंट एट 298 केल्विन. सो आप लोग देखिए, याद इसी चीज को करिएगा, बट हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिएगा दैट आपका टेम्परेचर अगर कहीं पे उन्होंने बोला ना दैट कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट दिस टेम्परेचर, 0 डिग्री कर दिया वहां पे, है ना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा जनरली. लेकिन बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में कभी नहीं आपके पास ऐसा सवाल नहीं आएगा, ठीक है? तो सॉरी, आ सकता है बोर्ड्स में. क्या था, हमको क्या पता क्या आने वाला है? कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया है ना, दैट वुड बी बेटर वर्डिंग. क्या आने वाला हो क्या ही पता है ना? So, ऐसा सवाल कभी नहीं आया यहाँ पे टेम्परेचर उन्होंने चेंज किया हो. चलिए ना, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉग क्यू. क्यू क्या है भाई? यहाँ पे रेज योर हैंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यू. कौन कौन है भाई इसको क्यू नहीं याद आ रहा है अभी तक? फादल को नहीं याद क्यू, बाकी सबको याद है? किस किस को याद है देखते हैं. अच्छा ओके, डेबोरा को नहीं याद, सफिया को नहीं याद, मीर हुसैन होंगे क्लास में तो उनको नहीं. अच्छा फिया को याद है. फिया व्हाट इज क्यू? टेल मी. यस फिया. Sir, is it charge? चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है ये आपकी इक्विलिब्रियम से. रिएक्शन कोशेंट कुछ याद आ रहा है? रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में होता था कुछ, नहीं याद आ रहा है, ठीक है. See, what is Q? It is actually, it's nothing but the ratio of concentration of product divided by the concentration of reactant. Product upon reactant को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके पास था, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? तो Q क्या आपका? इट इज बेसिकली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा. सी फॉर
a cell for a cell in which following reaction occurs: AA plus BB giving you CC plus DD, then Nernst equation is given as E will be equal to E naught minus 0.0591 divided by the number of electrons log of the concentration of A to the power A concentration, sorry my bad, product की जगह react लिख दिया हमने, concentration of C to the power C to D to the power D divided by A to the power A and B to the power B. ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिए, यू विल रेज हैंड, आपने अगर यहां तक लिख लिया तो ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन टॉपिक तो सबने डाल दिया था, आई थिंक यहां तक सबने लिख लिया होगा। चलिए रेज योर हैंड इफ यू आर डन टिल हियर, ठीक है ना, एंड देन आई विल स्क्रॉल डाउन। थोड़ी थोड़ी देर में हम स्क्रॉल डाउन ऐसे भी करते रहेंगे, बट रेज योर हैंड इफ यू आर डन टिल हियर। फादिल आपको जूम चैट में भेजने के लिए बोला था, आप व्हाट्सएप में भेज रहे हैं। Sir, I sent both. बोथ में आपने भेजा? Yes, sir. बोथ आपका लेकिन आया नहीं, बोथ आपने देखिए किसको भेजा जूम पर? Sir, Zoom पर Learnivio को भेज दिया गलती से। जी Yes. वही हमको लग रहा था, आप जिस तरह से निश्चिंत बैठे थे ना जब हम बोल रहे थे भेजने के लिए, तो हमको लगा आपने भेजा हुआ है। Yes, sir.
Now raise your hand if you're done completely. Sakya, are you still writing? Yes, sir. Last. Done? That's ठीक है. नोट लिख लीजिए. In Nernst equation, the concentration of pure solid and pure liquid is taken as unity. Unity का मतलब होता है वन, है ना, उसको वन लिया जाता है. उसके रीजन हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है. You will see the statement in the NCERT textbook also. शायद आप लोग को 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाया जाता हो. प्योर सॉलिड अगर और प्योर लिक्विड होता है, then we take their concentration as one. Why is that? Because let us suppose we have some solid here like this, ठीक है. So this solid, it contains n number of moles, n1 मान लेते हैं, and it has V1 volume. So n1 upon V1, this will be the concentration, number of moles upon volume, n1 upon V1. Now let us suppose what happened, some reaction happened और इससे क्या हुआ, थोड़ा सा portion इसने react कर लिया. So when a bit of reaction is done, then I can say कुछ section इसका क्या हो चुका होगा, it will be not there. Now at this particular point, let us suppose इसका जो यहाँ पे number of moles हो गया है, this is N2 after the reaction happened and this is V2. Now corresponding to the number of moles which has reacted, volume भी क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, right? N2 upon V2. N1 से V1 में क्या हुआ, number of moles decrease किए, V1 से V2 में what also happened, the volume also decreased. So overall you can say that the fraction is going to remain same. बात समझ में आ रही है? When the numerator भी घट रहा है, denominator भी क्या हो रहा है, घट रहा है. बोलो भाई, numerator is decreasing and others, Aliza, Deborah, Safia, समझ में आ रहा है ना? Right, numerator is also decreasing and denominator is also decreasing. So essentially what happens, the concentration of pure solid and pure liquid, they never change, वो उतना ही रहता है हमेशा. And if the concentration is not changing, तो जो चीज change नहीं हो रही है वो कोई effect देगी क्या? It is not going to give any effect on the EMF. That is why we take the concentration of pure solid and pure liquid as one. ये तो पहली बात हो गई, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है, ये चीज याद रखनी है बिल्कुल आपको कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए हमको वन लेना है. नेक्स्ट थिंग, फॉर आयंस in aqueous state, concentration is taken as, concentration तो बहुत सारा होता है ना, मोलारिटी वगैरह, concentration is taken as molarity. तो मोलारिटी को लिया जाता है यहाँ पे, we take that as molarity. Now for gaseous species, pressure is taken. ठीक है, तो आपको प्रेशर दिया रहेगा और उस प्रेशर को हम लोग लेंगे. और इसके अलावा कुछ और आपके पास हो ही नहीं सकता. सॉलिड होगा या तो, और यू विल हैव लिक्विड, राइट. सॉलिड हो सकता है आपके पास, लिक्विड हो सकता है आपके पास, और आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास होता है एक्वस आयंस हो सकते हैं, राइट. यू कैन हैव एक्वस आयंस. तो तीनों केसेस हम लोगों ने ले लिया है. फ्रॉम हियर यू विल राइट अ क्वेश्चन. कैलकुलेट the EMF of copper wire dipped in 0.1 molar CuSO4 solution at 298 Kelvin. The E0 of copper
is equal to 0.34 volts. Just a second. Sir, it will be log of 0.1. What log of 0.1? No, the concentration is taken as molarity, right? So it will be log of 0.1, the whole concentration. Why? Why it will be concentration 0.1 है तो 0.1 ही होगा ना? Log क्यों लगेगा वहां पे? Okay, including log value only. Sorry? No, sir. No, sir. ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे. Please listen here, guys. First of all, Nernst equation जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है? Read this. Especially Fia. Read this, Fia. Nernst equation is always written for a balanced chemical reaction. Did you write the reaction, Fia? No, sir. हाँ, तो फिर आप Nernst equation नहीं लिख सकते हैं. ठीक है? सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, that is a reaction what is happening. So you see copper is there, right? So what will happen? Copper 2 plus का reduction. Copper 2 plus 2 electron will give you copper. अब हमें कैसे पता कि इसका रिडक्शन ही हो रहा है? Because you can see we have been given the E naught of copper. Reduction potential copper का दिया है, and reduction potential क्या है? Positive. That means copper oxidize नहीं होना चाहता, वो reduce होना चाहता है. That is why I am writing the reduction वाला reaction. ठीक है? Now generally आपको क्या दिया रहेगा? They will give you the reaction. अच्छा, I am saying in this we have given E naught. E naught क्या होता है? Tell me, SRP या SOP? Oxidation potential या reduction potential? E naught. Reduction potential. And reduction potential, right? And reduction potential is positive. ठीक है? कॉपर जब भी आप किसी मेटल को डिप करेंगे ना, दो चीजें होती हैं. मेटल इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Mn पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव इज आल्सो गेटिंग कन्वर्टेड टू मेटल. दोनों ही चीजें होती हैं, बट जो ज्यादा फेवरेबल होता है इक्विलिब्रियम उसकी तरफ शिफ्ट हुआ रहता है. ठीक है? बोथ ऑफ दीज हैपेंस व्हेनेवर यू डिप अ पर्टिकुलर. आपने क्या डिप किया? कॉपर को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में, राइट? सो व्हेनेवर यू डिप अ मेटल in the solution of its salt, both of these reaction can occur. But what is more preferable? It is determined by the E naught. The SRP positive है या negative? If the SRP is positive, then the reduction will be happening. That means the metal positive will be going, metal ion will be getting reduced. और अगर SRP negative है तो उसका उल्टा होगा. ठीक है? But generally speaking, आपको reaction दी रहेगी, इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा. तो हम मतलब एक लेवल ऊपर से ही ले जाते हैं कि आपको अगर रिएक्शन ना दिया रहे तो किस तरह से सोचना है. ठीक है? Now please see here, guys. Copper 2 plus 2 electron is giving you copper. Now I will write the E is equal to E naught minus 0.059 1 divided by how many electrons are getting used? छोड़ दीजिए इसको, N. Then I will write log of the concentration of product divided by the concentration of reactant. ठीक है? यहाँ पे देखिए E naught कितना दिया हुआ है? It is 0.34, right? 0.34 minus 0.0591 divided by N. The number of electron is 2. Log of what is the product? अरे अब तो बोल दो भाई, product क्या है? What is product? Copper. पूरा बताएं. कॉपर. हाँ, कॉपर सॉलिड स्टेट में होगा, है ना? राइट? कॉपर तो सॉलिड स्टेट होता है ना. एंड द रिएक्टेंट इज कॉपर 2 प्लस. ठीक है? तो कॉपर का कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे हम लोग? टेल मी व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर? कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो भाई. डेबोरा, सफिया, फिया, फादल, अलीजा. 0.1. नो, 1 इट विल more. नॉट बी. हाँ, 1 हो जाएगा भाई. अभी तो बताया सॉलिड के लिए क्या करते हैं? 1 लेता सर, यूनिटी. 1 लेते हैं सॉलिड के लिए, यूनिटी. याद आया? ठीक है. नाउ कॉपर 2 प्लस का क्या लेंगे? 0.1 लेंगे. कॉपर 2 प्लस का कितना लेंगे? 0.1. So your formula this will become 0.34 minus 0. आप देखिए 0.059 को you can take it as 0.06. हम तो ले लेते हैं भाई क्योंकि हम टीचर. ठीक है ना?
अब आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का कैलकुलेशन कितना सही है, आप लोग थोड़ा सा राउंड ऑफ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, बट जनरली हम 0.03 ले लेते हैं बिकॉज टाइम कम रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप चाहिएगा कि इन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम ना बिताएं। देन यू विल राइट log ऑफ 1/0.1। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आई सजेस्ट हियर इज, जैसे ही आपको log ऑफ 1 अपॉन, ये आपने वैल्यूज प्लग इन कर ली, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन। 1/0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस एज 1/1/10, करेक्ट है? अरे बोलो हाँ या ना। Yes sir, yes sir. 0.1 को लिख सकते हैं ना, एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर ऑफ नेगेटिव बोल रहा है ये बच्चा, पहली बार आया मेरी क्लास में। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज व्हाट, टेल मी गाइस, सफिया, फिया, डेबोरा, अरे आप लोग तो बोल, हाँ हाँ बोले, अलीजा कुछ नहीं बोलेंगे। Sir, डिनोमिनेटर, numerator sir. हाँ डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बताइए log 10 क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? 1. 1 sir. 1। बस हो गया log सॉल्व। अब आपको देखिए ऐसे ना, प्लीज रिमेंबर दिस। अब देखिए आपने 3 स्टेप जो था यहाँ पे, एक स्टेप, ठीक है, फिर 2 स्टेप, फिर उसके बाद 3 स्टेप करना होता। तो 3 स्टेप के लिए आपको 0.34 में कुछ आप नहीं कर सकते, राइट? यू विल नॉट बी सॉल्विंग 0.34, राइट? ना ही आप कुछ 0.03 में चेंज, तो आप रिपीट करते करते ये सारी चीजों को 3 बार, उससे टाइम वेस्ट होता है। ना यू कैन डायरेक्टली राइट 0.34 माइनस 0.03 into 1, खत्म। 0.34 minus 0.03 will be equal to 0.31 volt. This is the E, the electrode potential of copper wire dipped in 0.1 molar copper sulfate solution when the E naught of copper is given as 0.34 volts. Clear है सबको? yes or no, please tell me. किसी स्टेप में Yes डाउट हो sir. तो बताएं। Yes, sir. यस सर, No sir. क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छापे। 3 मार्क्स का सवाल 10 इक्वेशन से पक्का है, बट उसमें गलतियों के चांसेस ना कहीं ज्यादा हो जाते, कहीं ज्यादा। Sir, usually we will be given the reaction, right? मतलब ऐसा सवाल नहीं रहेगा, आपको यूजुअली सेल दिया रहेगा। Sorry sir. आपको सेल दिया रहेगा, जैसा मैं ये कहा था ना, आपको इस तरह का सेल दिया रहेगा, बात समझ में आई? Yes sir, और yes सेल sir. से फिर आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है? Okay sir. वो एक सवाल कराएंगे हम, वो भी इस तरह के सवाल कराएंगे। Is your hand once you're done writing? Fadil, are you done? Yes, Fadil. Yes sir, yes sir. ठीक है। Write another question, guys.
Please write the question with me. Write Nernst equation and calculate EMF of the following cell. At 298 Kelvin. At 298 Kelvin. The cell they have given is copper solids. See, this is the whole question. सबसे पहले तो ना देखिए, द फर्स्ट वेरी इजी थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द सेल. आपको ई नॉट दिया, एनोड का और कैथोड का दिया हुआ, राइट? दे हैव बीन गिविंग यू फॉर द एनोड एंड कैथोड. तो आप क्या कीजिएगा, ई नॉट सेल. टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ई नॉट सेल? टेल मी गाइस, बोले ई नॉट. बोलो, सबको माइक ऑन करें. E naught minus. या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. Yes, sir. कितना जाएगा कैथोड का? दिस विल बी 0. कैथोड में क्या है, कौन सा रिएक्शन बताइए? विच वन इज कैथोड? कॉपर और एजी. कैथोड कौन सा है? अलीजा, देबोरा, माइक ऑन रखो यार तुम लोग प्लीज, बहुत जल्दी जवाब देना है आप लोग. कैथोड एनोड में इतना टाइम लगेगा. माइक ऑन रखें. व्हाट इज कैथोड? व्हाट इज कैथोड गाइस? कॉपर या एजी? Second one ए इतना सा, कॉपर या एजी? जल्दी बोलो. विच वन इज कैथोड? एजी. अलीजा, क्या हुआ, शांत क्यों है आप अलीजा? एनोड क्या हो जाएगा? कॉपर वाला. अच्छा 347 नहीं है, माई बैड. इसको 3% हटा दीजिए. पता नहीं क्यों 347 लिख दिया. ठीक है, दिस इज जस्ट 0.34. तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.46 वोल्ट्स. ठीक है. नाउ वंस यू हैव गॉट द ई नॉट, अब इसके बाद आपको क्या करना है? यू विल राइट द रिएक्शन एनोड एंड कैथोड. व्हाट इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड? टेल मी गाइस. एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? बोलो बोलो भाई. एनोड पे बोले. Cu plus 1e. सी यू. अलीजा Cu बोले is सी यू. equal to वेट. Cu2 अलीजा, plus. वेट अलीजा बोले. अलीजा, Yes, sir. हाँ जी बताएं, क्या बोल रहे थे आप? So Cu plus e. सी यू प्लस ई. प्रोडक्ट में से अच्छा गिफ्ट बोलते हैं. बताओ भाई, कुछ पढ़ाए. Cu हाँ बोलो. हाँ, सी यू प्लस 2e. 2e. फिर है क्या हुआ अलीजा? इसके बाद So प्रोडक्ट में Cu2 plus. प्रोडक्ट में Cu2 प्लस, ऐसे. अच्छा. कॉपर में आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं. Yes, sir. तो कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है.
लास्ट कब आपने प्रैक्टिस की थी एलिजा? सर नहीं किया। तो फिर कहाँ से भूल जाए? ऐसा उड़ेगा ना आप लोगों के दिमाग से, ऐसा उड़ेगा कि क्या ही बताएं हम। बहुत वॉलेटाइल है ना, प्रैक्टिस नहीं की यही सारी चीजें होंगी भाई। थोड़ा प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं है ना। समझने की बात तो हम करेंगे ही, समझने का काम अब टाइम चला भी गया समझने का, जो समझना था आप समझने का टाइम जब था वो था जब हम लोग इसको सेल रिएक्ट, पहला क्लास था ना, सेल रिएक्शन से, सॉरी सेल से हम लोग रिएक्शन लिख रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट क्लास जहाँ पे आपको समझना था। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी थी। वो जो समझ थी आपकी वो वहां पे क्या होता है, कंठस्थ हो जाती है जिसको बोलते हैं ना, वो आपको बिल्कुल याद हो जाता है, बाय हार्ट हो जाता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब आपने समझने का टाइम बिता दिया। कितने क्लासेस हो चुके हैं? फर्स्ट क्लास में हमने किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। अब वो दोबारा जाके आप कीजिएगा, अब झेलिए आप, है ना। अब आप झेलिए। गाइस, कैन एनीवन एल्स टेल मी व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? Sir, Cu is equal to Cu2 plus. यार इसको ना गिव्स बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? सब कोई बोलो, इसको क्या बोलते हैं? Gives. गिव्स। क्या बोलते हैं इसको? गिव्स, है ना जी, गिव्स बोलते हैं। Yes, sir. Cu2 plus 2 electron. और अभी भी देखो अलीजा, रटो मत अभी, ठीक है ना। देखिए आपको क्या लिखना है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस। क्या लिखना है अलीजा आपको? कॉपर से। यस सर, आ गया समझ। यही दिक्कत है आप लोगों की, पता है। 2 सवाल बाद सब भूल जाइएगा। कैथोड का बताइए तो अलीजा। कैथोड का अलीजा, इधर देखिए। यस सर। सर कैन यू स्क्रॉल डाउन? व्हाई शुड आई स्क्रॉल डाउन? सर Ag Ag प्लस प्लस E E then gives Ag. ऐसा कैसे हो सकता है कि Ag में हम कुछ ऐड करें और वो Ag ही बच जाए, है ना। जो समझे थे आप, थोड़ा रुक जाते ना, थोड़ा तो रुक जाते। क्या जल्दी समझ में आ गया? समझ में आ गया। कौन बता रहा है आपको क्या समझ में आया? बता, खुद सोचो ना ये भाई। आप Ag में कुछ जब कुछ ऐड करो तो Ag Ag ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। टेल मी अलीजा। हाँ जी बताएं। यस सर। सेम रहेगा, Ag चेंज नहीं होगा। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हमें ऑडिबल गाइस? यस सर, यूर Yes, sir. जी बताएं। Ag में कुछ आप अगर ऐड करेंगे तो Ag चेंज नहीं होगा, Ag Ag ही रहेगा। सर Ag माइनस हो जाएगा। Ag माइनस हो जाएगा तो Ag माइनस हो रहा है क्या? नहीं। फिर सुनो यार, सुना करो भाई, ठीक है ना। बात को थोड़ा सुना करो। आपको दी हुई इंफॉर्मेशन इतनी है, आपको रटना नहीं है बस। आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है इतनी, सही है ना। यस सर। आपको इसी से निकालना है। Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag आप बस उसी को लिख दो। Ag प्लस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Ag, सही है। ठीक है, यस इतना इतना लिख लेंगे ना, इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल। यस सर। दोनों को आपको न्यूट्रल करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो बताइए, न्यूट्रल करने के लिए आप प्रोटॉन तो आप कहीं से ला नहीं सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा प्रोटॉन निकल रहा है किसी को। लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड गेन ऑफ प्रोटॉन तो कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, राइट। यस सर। हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। अब ये बताइए, हम कहां पे इलेक्ट्रॉन डालें तो दोनों साइड न्यूट्रल हो जाए? सर Ag Ag में हम इलेक्ट्रॉन डालें तो भाई Ag वाला साइड तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ना। Ag में अगर आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो यहाँ पे तो अब -1 चार्ज हो गया, यहाँ पे +1 चार्ज, कैसे बराबर हुआ? अच्छा। हाँ तो सर उधर बताओ। डालेंगे, उधर हाँ पॉजिटिव बस नेगेटिव डालेंगे। हाँ बस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। यस सर। ठीक है। देखिए Yes. ये जरूरी नहीं है कि आदमी ये लिखे Ag प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, ये जरूरी नहीं है। आदमी इलेक्ट्रॉन प्लस Ag प्लस भी लिखे, लेकिन समझ के लिखे, है ना। सर ठीक है, खूब। मतलब हमको ये तो नहीं आना ना कितने अच्छे से नोट्स बनाए। नोट्स जो है वो यूजफुल होने चाहिए। जो आपने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा हो क्या लिखा है आपने। यहाँ पे भी सेम चीज हम वही बताने जा रहे थे आपको कि आप सीधा कॉपर से कॉपर 2 प्लस लिख दो आप।
अब कॉपर में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बिकॉज आप क्या देख, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे आप इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, बस काम खत्म हो गया आपका। नाउ वंस यू आर डन विद दिस, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बैलेंस द, in order to write the cell reaction, you have to balance the electron in both the anode and cathode. एनोड पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1। सो आई विल मल्टीप्लाई 2 इन द होल रिएक्शन एंड आई विल गेट दिस एज 2 Ag plus and 2 Ag. नाउ इफ यू राइट द होल रिएक्शन ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में भी आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में भी आ जाएगा, दैट इज व्हाई यू कैन इग्नोर दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट you will write this whole cell reaction को ऐड कर दीजिए बस। कॉपर है आपके पास plus 2 Ag positive is giving you copper 2 plus plus 2 Ag. एलिसा, हम ना एक और गुजारिश है आपसे यार, क्लास के टाइम सिर्फ क्लास किया करें आप, ठीक है? यस सर। देयर इज सम डिस्टर्बेंस, तो प्लीज उनसे थोड़ा सा माजरत चाह लें कि भाई हमको 1.5 घंटा तो पढ़ने दो कम से कम, ठीक है? यस सर। है ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आया आके हमसे बात करके जा रहा है ना? हम पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में कोई आके हमसे बोल रहा है और फिर हम उसको जवाब भी दे रहे हैं। चलिए, ये आप लोगों ने जब लिख लिया, दिस इज योर सेल रिएक्शन, ठीक है? अब आपके पास सेल रिएक्शन आ चुका है। नाउ फॉर दिस रिएक्शन वी विल राइट द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जो लिखा जाता है ना, वो इसके लिए नहीं लिखा जाता। आपको यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात समझ में आएगी कि इसको अगर लेके आपने लिखा तो क्या गलती होगी आपसे, ठीक है? आपने सेल रिएक्शन नहीं लिखा, यू सॉ दी सेल, द सेल रिप्रेजेंटेशन आपने देख के अगर लिखा होता ना, तो ये आपके पास 2 Ag आप कहीं से नहीं ला पाते, राइट? ये 2 आपको नहीं मिलता, बिकॉज देयर इज नो 2 Ag प्लस इन द सेल रिएक्शन। अब यहां पे आपके पास नस्ट इक्वेशन हो जाएगा, दिस विल बी E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई द 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन हो रहा है, लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉपर 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई Ag का स्क्वायर डिवाइड। अच्छा, अभी हम यहाँ पे अगर इसको हम इग्नोर कर दें बिकॉज Ag इज सॉलिड, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी ना, डायरेक्टली अगर हम इग्नोर कर दें बिकॉज Ag इज सॉलिड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, फाइन ना, सबको समझ में आ रहा है ना? यस ठीक है। इसके बाद रिएक्टेंट में आपने कॉपर को इग्नोर कर दिया बिकॉज कॉपर इज सॉलिड, बट आई विल नॉट ओनली राइट Ag पॉजिटिव, आई विल राइट Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, है ना, बिकॉज हियर वी हैव 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आपको याद हो, फॉर अ जनरल रिएक्शन यू हैव रिटन A to the power A and B to the power B. अब ये A to the power A और B to the power B आपको सेल के रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो सी आपके पास Ag प्लस तो है, आप Ag प्लस भी लिख देते, मे बी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे कर लेते कि 2 पॉजिटिव चार्जेस 0 से 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इट इज मे बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप वो भी शायद कुछ शॉर्टकट से कर लेते, बट यू कैन नॉट इग्नोर द सेल रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन बैलेंस करने के बाद यू विल गेट द सेल रिएक्शन एंड देन फॉर दिस सेल रिएक्शन यू हैव टू राइट द नस्ट इक्वेशन। अब आपके पास E नॉट सेल, वी हैव गॉट द E नॉट सेल एज हाउ मच, 0.46 माइनस 0.03 ले रहे हैं फिर से हम इसको, 0.06 डिवाइड बाय 2, 0.03 log of the concentration of copper is how much, 0.13 and the copper of Ag is 1 into 10 to the power minus 4, so 10 to the power minus 4 ले लेते हैं सिर्फ का स्क्वायर। I have got this log value, तो पहले हम log से डील कर लेंगे, so 0.13 डिवाइड बाई 10 to the power minus 8, करेक्ट है? 10 to the power minus 8 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.13 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power, कितना हो जाएगा, 10 to the power 8 प्लस 8, राइट? अच्छा, 10 to the power प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस एज 10 to the power प्लस 8 को लिख सकते हैं ऐसे, 13 into 10 to the power 6, सही है गाइस? Yes, नो, sir. यस सर। और ये पूरी चीज किसके अंदर है, लॉग के अंदर है। So this will be now log of 13 into 10 to the power 6, which will be equal to log of 13, right? And plus log of 10 to the power 6. Now log 13 की वैल्यू आपको शायद नहीं पता हो, right? तो जनरली हम ये कह रहे हैं कि जनरली आपको ना बोर्ड के एग्जाम में खासतौर से, आई डोंट नो अबाउट योर हाफ, आई मीन जो हाफ ईयरली वगैरह फिर प्री बोर्ड वगैरह होगा, उसमें तो आपको लॉग की वैल्यूज नहीं दिए रहते, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको लॉग की वैल्यू दी रहेगी। So log 13 is approximately equal to 1.11, ठीक है? 1.11 के बराबर होता है, एंड
log 10 to the power 6 I can write this as 6 नीचे आ जाएगा पावर रूल से and log 10 कुछ नहीं होता, log 10 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और this will be equal to 7.11 आपके पास क्या आ चुका है, this is the values of the whole log thing. So this will be equal to 0.46 minus 0.03 into 7.11. ठीक है guys, 0.46 minus 3 ones are 3, 3 ones are 3, 7 threes are 21. 21. And how many decimal points? 1, 2, 3, 4. So 0.2133. So 0.46 and minus 0.2133. This will be equal to 0.2467 volt. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इस कैलकुलेशन में रखना है। और ये हम हमेशा बोलेंगे आप सेम पेज पे करें, पीछे वाले पेज पे प्लीज मत कीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन बना दिया, यहाँ पे आप लॉग को सॉल्व कर ले पूरा, और मतलब इससे देखिए बहुत सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे सेव किए ना, अदरवाइज आई वुड हैव टू जस्ट री कॉपी एंड कॉपी 0.46 माइनस 0.3 माइनस, और फिर हम सिर्फ इसको लॉग वाली चीज को सॉल्व करते होते हैं। तो एक बार लॉग पे इधर साइड में सॉल्व कर ले जो वैल्यूज आ रही हैं, और उसके बाद प्लग इन करके सिर्फ उसके बाद छोटी सी कॉम्प्लेशन सॉरी कैलकुलेशन हो जाएगी बस, ठीक है। चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट हियर। No, sir. कॉपी करें, कॉपी करने में कहीं डाउट है देखिए छापिएगा, ड्राइंग मत बनाइएगा कॉपी करने वक्त, ठीक है। समझ समझ के कीजिए, ऐसा कीजिए कि आपको स्क्रीन कम से कम बार देखना पड़े, है ना। आपने स्टार्ट किया यहाँ से और उसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सीधा जब आपका आंसर आया, ये कैलकुलेशंस कॉपी करने के लिए प्लीज आप स्क्रीन का यूज ना करें, ठीक है। तभी मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या रहता है। अगर आप ड्राइंग की तरह करेंगे ना, मास्टर ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बना रहा है, बचपन में कॉपी करते थे, वैसा मत कीजिएगा बिना Yes, कुछ sir. दिमाग लगाए कॉपी कर। Please write this down quickly. और बोर्ड्स में मतलब जनरली स्पीकिंग इससे भी आसान सवाल आता है जो 3 मार्क्स का होता है, वो आप लोग को दिखाई देगा, समझ में आएगा क्या होता है। Meanwhile, चलिए ठीक, कॉपी कीजिए and then let me know once you're done writing. सत्या, can you please go to the Learnivio app और वहां पे थोड़ा देख के बताइए लास्ट जो असेसमेंट हुआ था आपका कौन से टॉपिक का था? Yes, sir. So electrochemical series. Waiting for Fia and Fadil. जी सत्या,
electrochemical series. Electrochemical series. Okay. एवरीवन इज डन। अब देखिए एक सवाल देते हैं जो आपको ना इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, बहुत ही आसान 3 मार्क्स का सवाल था, सब कुछ आसान था इसमें। सवाल कुछ इस तरह से था, ये खुद कीजिएगा आप लोग द होल थिंग। कैलकुलेट EMF of following cell. Calculate EMF of following cell. The cell they have given is magnesium solid getting converted to Mg2 plus, which has a concentration of 0.1 molar. Then we have salt bridge, and then we have copper 2 positive having a concentration of 0.01 molar, and it is getting converted to copper solid. Okay. There are a few things they have given. उन्होंने E0 सेल ही दे दिया आपको, है ना, आपको Mg और कॉपर का नहीं दिया कैलकुलेटर में, सेल ही का दे दिया। आपके पास है प्लस 2.71 वोल्ट्स जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। तो उसने 1 फैराडे का वैल्यू दिया, दैट इज 96500, इसकी कोई इस्तेमाल नहीं है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज बताई कि log 10 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE 2023। ठीक है, ये 3 मार्क्स का सवाल है। ऑल्दो रिएक्शन के बाद ही नस्ट इक्वेशन लिखा जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू विल राइट द रिएक्शन, उसके बाद ही नस्ट इक्वेशन लिखिएगा। Sir, what did you write after E0 cell? 1? Faraday is 96500। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उन्होंने दिया बस, बिकॉज नस्ट इक्वेशन का अगर जो एब्सोल्यूट फॉर्मूला होता है दैट इज इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF इनटू log Q होता है ना, तो F की वैल्यू हम सजेस्ट की हुई है। ऐसा कोई खास इस्तेमाल नहीं है। तो दूसरे सवाल में होगा 2 सवाल के साथ साथ, हाँ 2 सवाल के साथ साथ उसके लिए उन्होंने फैराडे दिया हुआ। 5 मार्क्स का एक सवाल था जिसमें एक सेक्शन 2 मार्क्स का था और ये नस्ट इक्वेशन वाला 3 मार्क्स का था। We'll send your answers on my WhatsApp once you're done.
तो सफिया फ्री के मार्क्स हैं कि नहीं? हाँ सफिया, Yes, sir. फ्री के मार्क्स हैं या नहीं? नहीं फिर मैं फ्री 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 के मार्क्स हैं या नहीं? फ्री के मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल। नहीं फ्री के मार्क्स नहीं है, मतलब आसान है या नहीं ये बताइए आप। Yeah, it's easy, sir. इट्स इजी, मतलब 3 मार्क्स के हिसाब से तो आसान है ना। Yes, sir. हाँ हाँ, वही वही बोलते हैं फ्री के मार्क्स, मतलब इसको बोलते हैं फ्री के मार्क्स। ठीक है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा। हाँ बट ये कि इसका बैकग्राउंड जो है ना बहुत क्रूशियल है। बैकग्राउंड अगर आप देखें, आप किसी को ऐसे मत अगर बोल देते हैं ना, जनरली आप देखिएगा एंड टाइम्स में बहुत सारी जगह पीपल रिलीज स्ट्रैटेजीज टू स्कोर 80+, है ना। 30 दिन के अंदर 80+ स्कोर लेके आ जाए ना, दे गिव यू स्ट्रैटेजी, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक। वो बोल तो देते हैं सिंपल सिंपल सी बातों में कि नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का सवाल आता है ना। बस नस्ट इक्वेशन छोटा सा एक इक्वेशन है छोटा सा, उसको कर लीजिए, 3 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स है। बट ये इतना आसान नहीं है। वो भले ही लोगों को लगता हो कि एक इक्वेशन और 3 मार्क्स है, बट अगर गलती करेंगे वहां पे ना, बहुत जगह गलती करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में गलती हो सकती है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कहाँ लिखना है नहीं लिखना है उसमें, है ना। यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट दिस सेल रिप्रेजेंटेशन टू अ सेल रिएक्शन। ठीक है, लॉग आना चाहिए आपको, लॉग नहीं आता तब भी फंसेंगे बच्चे। तो बोलना आसान होता है, बट हाँ बैकग्राउंड में हम लोगों ने मेहनत की हुई है, इस वजह से अभी आसान है। हम लोगों ने तोड़ तोड़ के मेहनत की थी। चलिए, और किसी का आंसर आया है अभी? ओके, फिया हैज सेंड द आंसर। सही है, सही है फिया। आसान है ना फिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? Yes, sir. Understood. Easy. इजी ना, ठीक है। Fadil and Aliza. Yes, yes, Fadil, sir. Aliza and also Deborah waiting for you guys. भाई 1 मिनट है आपके पास, नहीं प्लीज कैन यू सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन गाइस। जो भी किया, अलीजा या डेबोरा, डेबोरा स्पेशली यू, आप नहीं भेजते जल्दी। अलीजा एंड डेबोरा सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन ना अभी तक, कुछ जो भी किया आपने। आंसर से हमको देखिए उतना मतलब नहीं रहता जनरली, जितना अप्रोच से मतलब रहता है। बताएं अलीजा। One is in another room, so can I go and get it? हाँ हाँ, श्योर, नो प्रॉब्लम। सेंट, ठीक है। अच्छा एक और चीज ना, जब आप आंसर लिखने तो उसमें लास्ट में ना वी लिख दिया करें, वोल्ट दिखाने के लिए। अदरवाइज एक दो बार हमने सीबीएसई के मार्किंग स्कीम्स में देखा है दैट वो एक कमेंट लिख देते हैं ऐसे कि डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ नो यूनिट और रॉन्ग यूनिट। तो बेकार में हाफ मार्क अपना क्यों गवाए, है ना। तो यूनिट के साथ लिखते रहे। हाँ ठीक है, फिया ने लिखा हुआ है, सफिया सफिया ने भी लिखा है, ठीक है। डेबोरा, आर यू नॉट देयर? Writing, sir. नहीं नहीं, लिखना नहीं है, भेजना है। डेबोरा सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन। यार आप बहुत हमसे बुलवाते हो ये चीज, आप भेजते नहीं है। सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ। कुछ भी आपने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक पेज भेज दो, हमको दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, हमको उससे दिक्कत नहीं है। सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन टिल नाउ। अलीजा आप भी जल्दी भेजें। Sir, did you check mine? हाँ सही है आप। Okay. आप ही को तो बोल रहे थे हम, वो बस वोल्ट लिख देने के लिए, Yes, yes. है ना। बाकी कहीं अटके तो नहीं ना आप? स्मूथली हो गया? थोड़ा सा I was confused the number of electrons, but समझ आ गया फिर। समझ आ गया फिर? अच्छा ठीक है, आपने वैसे ही क्या ना, मतलब जो कॉपर 2+ से कॉपर, फिर उसके बाद आपने चार्ज बैलेंस कर दिया, है ना। Yes, नहीं sir, in the equation I was confused कि number of electrons में क्या डालना है। अच्छा वो, अच्छा ठीक। लीजा ने भेजा, आओ भाई साहब, लीजा का तो वो, मैं देखिए मेरी बात आप तो मानती है नहीं, है ना। हमने बोला था भाई लॉग वाले को अलग से करने के लिए, कहा था कि नहीं अलीजा? Yes, sir. फिर अब बात ही नहीं मानते हमारी, मतलब कुछ तो थोड़ा समझो। मतलब हम देखिए, एक तो सबसे पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब हम 11th 12th में थे,
फिर उसके बाद टीचिंग, कुछ समझ के हम बोलते हैं ना कहाँ पे बच्चे, उसी में आपके ना मतलब गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, वो हमने देखा है जनरली। और ये आपने नहीं 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 नहीं, कॉपर 2+ से आपने mg को फिर कॉपी ही नहीं किया, चलिए ठीक है, लेकिन मिस्टेक्स तो हैं लीजा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप देखो यार, आपने लिखा नहीं है क्या, हमने कॉपर को कॉपी नहीं किया। आई ऑल्सो कॉपीड दिस टू एजी ऑल्सो ना, तो वो सारी चीजें आपने कॉपी नहीं की सेल रिएक्शन में, यस सर। है ना। तो देखिए अभी तो इस सवाल में आपका मार्क्स नहीं कटेगा फॉर श्योर, ठीक है ना, हम इस सवाल में मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू टू राइट द सेल रिएक्शन। कई भी सवाल में क्या होता है, राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो सेल रिएक्शन नहीं है तो फिर मार्क्स नहीं कटेगा, बट आपको पूरी चीज लिखनी चाहिए, ठीक है, mg प्लस कॉपर 2+, अदरवाइज आपका 0.0591, ये आपने लॉग में गड़बड़ा गया आप, है ना, है लीजा। Yes. देखिए बहुत आसान था लॉग तो। डेबोरा आपका आंसर यार, ये मतलब कुछ बच्चे ना बिल्कुल एकदम, यार हम देखेंगे नहीं आपका आंसर, भेजो आप डेबोरा, आप आई विल नॉट सी योर आंसर, आपका मैसेज आएगा हम डिलीट कर देंगे। यार मूड खराब हो जाता है बिल्कुल, इतनी दफा से हम बोले जा रहे हैं। आपने क्या लिखा बताइए, लॉग 0.1 अपॉन, हाँ 0.0. ठीक है, 0.1 अपॉन 0.01, ठीक है ना। एक तो ये चीज आपने यहाँ पे कहीं नेक्स्ट इक्वेशन में लिखी होगी, इधर लिखा होगा आपने। अब पहले इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है लीजा। 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10, Yes sir. और 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 1/100, ठीक है। अब ये हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, Yes sir. समझ में आया ये। Yes sir. अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 10, और log 10 क्या होता है, 1. Yes. रीजन है ना भाई, रीजन है कि अलग लिखने का। आपको आप जब इस पोर्शन को लिख रहे हैं ना, तो योर ब्रेन हैज टू वर्क फॉर दिस पार्ट ऑल्सो ना, कि कॉपी करने में कहीं पे आपका कुछ मिस्टेक ना हो जाए, ऊपर से नीचे कॉपी करने में, वहां पे जो ब्रेन लग रहा है आपका, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस वैसे ही तुरंत बढ़ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज अपना ब्रेन ना डील नहीं कर सकता, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, इट कैन नॉट डील मोर देन 4 थिंग एट अ टाइम। एक बार में कितनी चीजें बस डील कर सकता है, बोले कितनी चीजें, 4 चीजें, ठीक है। इस वजह से व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रका किसी भी नमाज में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रकात क्या है, First. मैक्सिमम 4. कितने, हाँ 4, 4. है ना, एक बार में 4, उससे ज्यादा फिर 4 में भी आजकल के बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग फिर भी गड़बड़ा जाते हैं। अब सोचो एक बार में 6 पढ़ना रहता तो सिर्फ सजदा सहू पे सजदा सहू होता रहता, है ना। तो मैक्सिमम 4, उससे ज्यादा दिमाग डील ही नहीं करता, तो इसलिए बहुत बहुत नाजुक चीज भाई, आदमी लोग मतलब यू कैन ट्रेन इट, बट एट अ टाइम वर्क करने के लिए ना दिमाग बहुत नाजुक चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या किया करें आप, कंपार्टमेंटलाइज कर ले, है ना। एक यहाँ पे आपने लिखा है पूरा नेक्स्ट इक्वेशन, उधर लिखना है आपको, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक सभी का आंसर आ गया। ये डेबोरा ने हमको भेजा नहीं, डेबोरा का आंसर नहीं आ रहा है, हम देखेंगे। अब वो आपको अभी भेजा इन्होंने, देखे हम, नहीं डेबोरा ने अभी भेजा भी नहीं, भेजा है इन्होंने, नहीं नहीं भेजा, देखिए क्या बदमाशी है यार डेबोरा, है तुमको हम इतनी देर से आंसर भेजने के लिए बोल रहे हैं। चलिए गाइस, अब एक लास्ट चीज है, व्हाई यू आर सेंडिंग इट नाउ, आई विल नॉट सी डेबोरा, आप समझो हम आंसर भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हाउ टू डू इट, सी हियर गाइस। मतलब इस मामले में तो हम बिल्कुल इनटॉलरेंट है, दैट आई एम सेइंग सेंड मी व्हाटएवर यू हैव डन, और फिर बच्चे अगर भेजे ना, इनटॉलरेंट बिल्कुल, मतलब मेरा कंप्लेन कर दो, सर हमारा कुछ बात नहीं सुनते, कोई दिक्कत नहीं हमको, आई हैव नो वरीज फॉर दैट। ग्राफ ऑफ नस्ट इक्वेशन, ठीक है, यहां पे देखिए, व्हेन यू हैव ई mn पॉजिटिव से m इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ mn पॉजिटिव टू m माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log ऑफ, सिंस mn पॉजिटिव आपका ना यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो, ये सेम रिएक्शन है जो हमने सबसे पहली बार लिखा था, यहाँ पे इस इक्वेशन आपके पास कौन सा, ये वाला इक्वेशन है, देखिए, तो ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, मेटल, उसके लिए 1, रिएक्टेंट है mn पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ mn पॉजिटिव इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो वहां पे लॉग के बाद क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट लॉग ऑफ
1/mn पॉजिटिव। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि log of 1/a is equal to minus log a, याद है? log of 1/a is equal to minus log a। अब ये इक्वेशन हो जाएगा E और E is equal to E naught minus 0.0591 whatever the number of electrons in, and minus of log mn positive. I can write this as E is equal to E naught. Now this minus will add up. Like if you multiply, it will become plus 0.0591 divided by n log of mn positive. ठीक है? Now if you draw a graph, ये आपके पास y है, ठीक है? This is a y axis, this is your x, log of mn positive, this is your x। ये आपके पास, अब ये x है तो x के साथ क्या आता है? m आएगा। Let me write this in some different color, wait a second। y is equal to mx plus c आता है ना आप लोग को, this is your y, ये आपके पास है x, है ना? What is Nernst equation? Nernst equation, it gives the relationship between EMF of the cell and concentration of ions। ठीक है, तो उन दोनों का ग्राफ बनाएंगे हम y and x। x के साथ क्या आता है? y is equal to mx में आपके पास आता है m। This is your slope and this thing is your intercept, that is c। Now if you will make the graph according to the y is equal to mx plus c, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? Let us see। यहाँ पे आपके पास है E, यहाँ पे आपके पास है log of mn positive, ठीक है? log of mn positive। Now intercept आपका क्या है? Positive, so it will be on the positive y axis। इसको हम इधर लिखते हैं, ये है आपका some different color, and let us also give this some different color। ठीक है? Now E is a positive value, so your graph will be starting from here। ग्राफ आपका स्टार्ट तो पॉजिटिव वैल्यू से होगा, एंड सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होगा। एंड व्हाट इज द स्लोप? स्लोप आपका m क्या है? प्लस 0.591 अपॉन n। स्लोप भी पॉजिटिव है तो स्लोप अपवर्ड्स रहेगा, सो दिस विल बी योर ग्राफ। ठीक है, सो E and log mn positive। प्लीज ड्रॉ दिस डाउन। डेबोरा आपको बोलना चाहिए ना, आपको नहीं आ रहा है। हाँ डेबोरा, डेबोरा कैन यू प्लीज टर्न योर माइक ऑन? कैमरा भी ऑन करिए, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? Tell me Deborah, why did you not say anything that you don't understand what is happening? Sorry? I was stuck, sir। You were stuck, तो आप बताएंगे ना, हमने तो बोला था if you get stuck please let me know if you are getting stuck। इससे पहले वाले आपको समझ में also Deborah I can't hear you properly है, ठीक है? तो either get a mic or earphone or something, ठीक है? because I cannot hear you। ईयरफोन वगैरह तो ईयरफोन लगा ले प्लीज। Sir, can you hear me? हाँ, a bit better now। ठीक है, अब now you tell me, see, ऐसा नहीं कि you will not know anything, you know how to write the cell reaction, right? एनोड कैथोड ये आता है आपको? Yes, sir। तो वो क्यों नहीं लिखा आपने? You can write till cell reaction ना, वो तो लिखते हैं आप। And it's not आप बोले सर I am writing, हम मतलब आप समझिए फिर शांत हो गए आप। will not speak, हम क्या ही बताएं। सेल रिएक्शन वगैरह लिखें, सेल ऐसे ये तो आपको लिखने आना चाहिए, ये आता है आपको? हाँ या ना? बट बी क्लियर है, बोला आता है या नहीं आता? नहीं आता तो वो भी बता दो ना, फिर हम वो भी समझाएंगे, नहीं तो फिर हम समझाते रहेंगे आपको, दूसरी चीज नहीं आ रही, फिर दूसरी चीज नहीं आ रही। यस डेबोरा टेल मी। Yes, sir। व्हाट? यस सर। डू यू नो हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन? Yes, sir। लिखिए, राइट दिस सेल रिएक्शन, इसका जल्दी लिख के बताइए हमको। एनोड कैथोड तुरंत
You have the question, right? Yes, sir. हाँ, take a screenshot, इसका screenshot ले लीजिए. Take a screenshot for this, उसके बाद लिखिए उसको. और भाई यार डेबोरा, अगर आप नहीं बोलोगे ना हम बैच चेंज कराएंगे यार आपका. हाँ, मेरा टाइम ये बर्बाद होता है कि नहीं, आप बताओ. आप हमको पहले बोलते कि सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करते हैं हम आपको. टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस. अरे भाई डेबोरा यार, बात बात ही नहीं, लिखने लगे. टेक अ स्क्रीनशॉट. यू टुक अ स्क्रीनशॉट. Sir. Yes, sir. ठीक है. नाउ यू राइट दैट इक्वेशन. हाँ, आप लोगों ने लिख लिया क्या? ग्राफ बना लिया आप लोगों ने? फादिल, अलीजा, सफिया, Yes, sir. Yes, sir. हो गया? ठीक है. सो यू गाइस कैन गो टू दी लर्निवियो ऐप. वहां पे एक असेसमेंट होगा नेक्स्ट इक्वेशन पे. प्लीज अटेम्प्ट दैट. डन डेबोरा. डेबोरा, यू हैव टू कीप योर माइक ऑन. आप कहाँ जा रहे हैं? यू हैव टू बी इन द क्लास. टू कीप योर कैमराज ऑन, माइक ऑन. यस डेबोरा. Sir, can we leave Yes, the sir. meeting? हाँ, you guys can leave. Those who are doing the assessment, they can leave. Okay, thank you very much. Bye bye. Take care. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. Deborah, turn your cameras on. Yes, done, Deborah. Cell reactions and all. So you have sent it to me. ठीक है. How many electrons are used? Tell me in this reaction. Two, sir. Sorry, how much? Two. हाँ, ठीक है. Now you write the next equation. Were you not in the class? क्या आप कहीं चले गए थे? Did you go somewhere in between? No, sir. नहीं, हम पूछ. So अच्छा, फिर आप किया क्यों नहीं? आपने कुछ नहीं. अच्छा, एक सेकंड. Wait a second. Why you are multiplying by 2 in the cathode reaction? Can you tell me? Also, your reactions are messed up. They are completely messed up. See? What is anode? Deborah, what happens at anode? Oxidation or reduction? Oxidation. Oxidation is gain of electron or loss of electron? Gain of electron. Oxidation is? Gain of electron. Oh, no. No. Reduction of electron. Sorry? Reduction of electron कुछ नहीं होता है. It is gain of electron or loss of electron? Loss of electron. See anode, what we have written. No, Deborah, you are not. ये आपको नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत होगी.
Just a second. इससे पहले कॉपर वाला आपने सही किया था, बट वो भी आपने देर से रिएक्शन भेजा। आई डोंट नो वेदर आपने सिर्फ मेरा देख के भेज दिया या फिर आपने खुद से किया। डेबोरा, leave that, right? This anode and cathode reaction for this. Can you see everything correctly? Here we have Ni/Ni2 plus salt bridge Ag plus and Ag. Write the anode and cathode reaction for this. And also write the cell reaction. Deborah, why your video gets turned off all the time? No, this, I mean, फिर हम सोचेंगे कि आप या तो इंटरनेट पे देख रहे हैं कि क्या होगा इसका आंसर, फिर उसके बाद आप भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आप, हाँ, टेल मी। It happens when I open my mic. It happens when you Open my mic, like both are open, something happens. no, this side is wrong. Lisa, you need to watch the first lecture once again. I've not understood the concept of how, I mean, the concept of writing a reaction from a given cell. Okay, so here we have done many things. Please watch this lecture. Okay, and I think later on also we did